Hello students, I hope all of you are doing perfectly well. Okay, we have been regularly meeting now for quite a bit of lectures. Our chapter of partnership final accounts has also progressed a little bit ahead. So in today's lecture video, I will be taking a few new adjustments, some extra new items in the trial balance, since we no longer are like in a KG phase of final accounts. We have got a little bit of a promotion and we can right now handle some bit not complicated items but different items, new items in final accounts. Just a quick reminder, because of the amount of information that you are bombarded with, maybe you tend to forget, but please note, as usual, as has been the pattern for previous lecture videos, there has always a card that is being provided to you. You can click, you can go in the past tense, come back and watch this particular video, as well as at the end of this video there will be a link provided. Okay, we do our best to provide you timestamps. If this video is of whatever duration, if you want to selectively jump to a designated place in the video, maybe the question, maybe the adjustments in that, maybe the solution, okay, a timestamp will be provided. You can utilize that facility and make use of it. Fine, let's get started. This is your question. Adi and Geet are partners. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. I have not done any changes in the year ended, and I cannot, because for your entire 12th standard, the year ended will remain the same, which is 31st March 2019. ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला है. मैं चाहूँ तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इसको फाइनेंशियल ईयर एंड कहते हैं और पूरे हमारे भारत देश में जो भी बैंक्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये सारे लोग जो है, ये सारी कंपनियां, ये सारे बिजनेसेस 31 मार्च 2019 में ही अपना ईयर एंड रखते हैं. मतलब साल की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल को होती है 2018 हमारे सम में. ओके, ये सम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं. जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है मार्क द trial balance. Okay, we have always been following steps in the past videos also. We will continue the pattern. We cannot be jumping steps. मैंने पहले भी ये बोला है आपको, आप कोई भी गाड़ी चलाओ जिसमें 4-5 गियर होंगे, कोशिश कर लेना पहले से चौथे पे जंप नहीं मार पाओगे. पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर चौथा. कंपनीज को भी पता है कि एक रीजन होता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So we will start with a step 1, which is mark the trial balance. Whatever are the new items in this particular trial balance, I will try my best to elaborate and give you a little bit of a explanation. Okay, is that understood by you? So now this has been set as per your screen. Okay, we will get started. What is the first item? That is purchases. डू रिमेंबर, हम लोग डेबिट साइड पे है, तो सब डेबिट की जो चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा, मे बी आपने पूछा नहीं होगा, कि डेबिट में क्या क्या आता है. 2 थिंग्स, 2 चीजें डेबिट में आती है. एक होता है एसेट और दूसरा होता है एक्सपेंसेस. इसका मतलब क्या है, जो लंबा लिस्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एल लाइबिलिटी, दिस थिंग कभी लिखना मत, गलत होगा, सीधी सी बात है. मतलब वो हो ही नहीं सकता है. डेबिट में 2 ही चीजें आ सकती है, या तो एक्सपेंसेस या तो एसेट, ये वाला एसेट. और क्रेडिट में उल्टा, इनकम आ सकता है, कमाई, ओके, या तो लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी को डेबिट में मत ढूंढना, मिलने वाला नहीं है, आपका टाइम पास होने वाला है. उसी तरह एसेट को क्रेडिट में मत ढूंढना. ये बेसिक्स होते हैं. ये जब ट्रायल बैलेंस आपको आपके प्रीवियस ईयर में पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर ये बेसिक्स पढ़ाया जाता है कि डेबिट में यू गेट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट में यू गेट इनकम्स एंड लाइबिलिटीज. ओके, लेट्स मूव ऑन. परचेसेस, ये कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट. परचेसेस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर.
बाय फिक्स्ड व्हाट डू आई मीन, वो हमेशा प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड मतलब आप लोग पहले से ही उसको लिख देते हो, क्योंकि वो गुड्स रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है जो आप गोडाउन में करते हो, जो ट्रेडिंग के साथ कनेक्टेड है। द नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स। डेटर्स क्या है? एसेट। डेटर्स आर कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स है तो बिजनेस का भविष्य है, कस्टमर्स नहीं है तो दुकान को बंद करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स एन एसेट। उसके बाद आज रिटर्न इनवर्ड लिखा है। व्हाट डज रिटर्न इनवर्ड मीन? रिटर्न इनवर्ड का मतलब है, ये दिखता है आपको, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? आपने बेच दिया। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? जो आपने बेचा वो वापस आ गया। किसको बेचा? कस्टमर को बेचा ना, उसने वापस दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। अगर आप आपकी ट्रेडिंग अकाउंट पे नजर मार लो, यू सी सेल्स, उसके नीचे हमेशा हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया है। ओके, उसी का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट sales return. Okay, therefore it will be minus from sales and obviously written in trading account. Moving on, opening stock, that is the first item in trading account. मतलब वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ बायहार्ट होना चाहिए, बदन क्योंकि इतनी बार लिखते हो आपको ऑब्वियसली ये याद होगा। नेक्स्ट इज लूज टूल्स। ओके, आपने कारपेंटर को काम करते हुए देखा होगा, काफी बार देखा होगा। आपने इलेक्ट्रिशियन को काम करते हुए देखा होगा। वो काम जब करते हैं, whenever they are performing their task, they have a lot of things in their hands. Okay, कभी हथौड़ा रहेगा, कभी ड्रिल की मशीन रहेगी, कभी आरी रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा जिसके द्वारा वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्क्रू ड्राइवर रहेगा, ये टूल्स होते हैं। ओके, तो स्क्रू ड्राइवर का एक किट होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स हेड्स उसके अवेलेबल रहते हैं। तो उसके लिए उसको लूज कहा जाता है कि वो फिक्स्ड नहीं है, उसको आप चेंजेस कर सकते हो। एंड जब भी कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन काम करने जाता है, वो नए टूल्स नहीं खरीदता, वही टूल्स वो यूज करता है। इनफैक्ट वो टूल्स काफी सालों तक यूज करता है। अगर वो टूल्स उसके पास नहीं है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में वो कमा नहीं पाएगा। तो लूज टूल्स इन कारीगरों को, इन प्रोफेशनल्स को एक्चुअली ओके काम आता है। So it is useful in future, therefore it is an asset. Cash in hand is always good for us in future, so it is always going to be an asset. Drawings का मतलब क्या है? पार्टनर कुछ लेकर गया, और पार्टनर जो भी लेकर जाता है, लेकर आता है, connected to partner is always supposed to be written in their account, and which is partner's capital account. Next one is bank charges. Bank charges का मतलब क्या है? Bank provides a lot of services, especially in today's digital world, जहां पर काफी ज्यादा पेमेंट्स जो होते हैं, पैसे का आना, पैसे का जाना, सब डिजिटल हो चुका है। ओके, RTGS, NEFT, you see a lot of wordings that are used connected to the bank, a lot of services जो बैंक से connected है। ओके, डिजिटल सर्विसेज। तो ये सब काम करने के लिए फाइन, बैंक फ्री का नहीं करता है, बैंक आपसे कुछ पैसा लेता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक चार्जेस। इसका प्रोडक्शन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, कोल, कोयला, गैस एंड वाटर। फाइन, ओके, कोल क्या आपको लगता है? कोयले की जरूरत आपको ऑफिस में पड़ेगी, ऑफिस मतलब P&L अकाउंट। ओके ओके, गैस की जरूरत, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट LPG का जो सिलेंडर आता है ना, जो आपके किचन में लगाया जाता है, ये उस गैस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कोल जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे लगता है। ओके, कुछ कुछ ऐसे कुकिंग की चीजें होती है जहां पर कुकिंग किया जाता है, जिसमें अंदर कोयला डाला जाता है, और काफी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जहां पर कोल के दम पर, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं, पर कोल के दम पर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगेन, गैस का मतलब क्या होता है? काफी टाइम पे जब वेल्डिंग होता है, ओके, जब दो मेटल के पार्ट्स को जोड़ा जाता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन गैसेस जोड़ा जाता है, उसको जरूरत पड़ती है। ओके, उस प्रोसेस में, मीनिंग टू से कोल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, गैस ओके इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये पीने का पानी नहीं है। ओके, पीने का पानी तो हमको सबवा लगता है। ओके, ये सोटू से प्यूरिफिकेशन का पानी है। जब प्रोडक्शन होता है ना, फाइन, व्हेन केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो वेस्ट पैदा होता है, जो फैक्ट्री के बाहर
फेंका जाता है, ओके, लिटरली लिक्विड के फॉर्म में, अगर प्रोडक्शन के बाद उसको ऐसे ही फेंक दे तो पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के, सरकार के कुछ नियम होते हैं कि जब आपका कचरा जो है, जो प्रोडक्शन के बाद लिक्विड के फॉर्म में पैदा होता है और आप उसको गटर में, नदी में बहा देते हो, तो उसको पक्का करो कि उसमें जो केमिकल्स है वो कम हो चुके हैं, ताकि जब उसको बहाया जाए, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, द फिश एंड एवरीथिंग, जो मछलियां होती है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये पीने की कोई मिनरल वाटर नहीं है, ये सारी चीजें, ऑल दीज थ्री आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, देयरफॉर द मार्किंग इज ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा लंबा बन गया, लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ न्यू आइटम, तो मैं थोड़ा उस पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं। सैलरीज, ऑफिस वाले का पगार होता है तो वो हमेशा पीएनएल में जाएगा। लीगल चार्जेस किसको देते हो? लीगल का मतलब क्या है? एडवोकेट, वकील, लॉयर, उसका दिमाग आपको यूज होता है, माइंड, देयरफॉर दिस विल आल्सो गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज एन एडवोकेट कम्स टू वर्क इन एन ऑफिस, ओके, प्रोडक्शन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, प्लीज नोट, मैनेजर सैलरी बोले, अ मैनेजर इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन एन ऑफिस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वर्क से मतलब बदल जाता है। वर्क का मतलब है प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट यू हैव गॉट टू रिमेंबर, ओके, आपने दिमाग में ये याद रख लेना, वर्क का मतलब है प्रोडक्शन। तो यू कैन रीड दिस, इसको ना थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, एंड प्रोडक्शन काफे होता है फैक्ट्री में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका मार्किंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मली मैनेजर सैलरी इज पीएनएल, बट वर्क्स जोड़ देंगे तो उसका मतलब बदल जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। Next item, discount. This is a mental calculation and it is always done in profit and loss account. Goodwill. What does goodwill mean? Good reputation. Okay? जब सिंगर अच्छा गाता है, सालों से अच्छा गा रहा है, तो अच्छा नाम बनाता है वो इंडस्ट्री के अंदर। उसी तरह कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर होगा, फुटबॉलर होगा, टेबल टेनिस से कनेक्टेड होगा, बैडमिंटन से कनेक्टेड होगा, जब एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अपने मेहनत से, ओके, जब एक रेसलर ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओके, अपने मेहनत से अपना नाम बनाता है, ओके, अपना रेपुटेशन बनाता है, तो उसका नाम सालों साल तक, ओके, अच्छा रहता है, और उसके अच्छे नाम के वजह से कंपनीज उसके पास आते हैं, उसको कहते हैं कि सर आप हमारे प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर दो, हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में आप 2-3 शब्दों को ट्विटर पे बता दो, आपके ट्विटर हैंडल पे बता दो। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज गुड रेप्यूटेशन। जब कोई अपना नाम सोसाइटी में बहुत अच्छा बना देता है तो उसके लिए वो सालों साल तक काम आता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, इट इज यूजफुल इन फ्यूचर। पेटेंट हो सकता है कि नई चीज है, एक्सप्लेन करा देता हूं मैं। व्हाट डज पेटेंट मीन? एवरी कंपनी, वेदर वो फार्मा कंपनी हो, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां बनाती है, ओके, अलग अलग टाइप के दवाइयां बनाती है। उसके अलावा जो मोटर कार की कंपनियां होती है, दैट विच मेक्स ऑटोमोबाइल्स, देयर आर मेनी कंपनीज विच मेक्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, नए नए टीवीज बनाते हैं, नए नए ऑडियो सिस्टम्स बनाते हैं। मोबाइल में तो लगभग हर दिन पे कुछ ना कुछ तो नया बनता ही रहता है। व्हेन अ कंपनी मेक्स समथिंग न्यू, कुछ नया पैदा करती है, मतलब क्या है? हर कंपनी में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, तो उसमें रिसर्च कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, ओके। जब कोविड-19 की परेशानी चल रही है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ओके, जोर शोर से 24 घंटे साइंटिस्ट उनके लेबोरेटरीज में बैठ के वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई ना कोई कंपनी उस नए वैक्सीन को बना देगी। तो जब वो वैक्सीन को बनाती है, ओके, नया इन्वेंट करती है, ओके, उन लोगों को काफी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, काफी टाइम तक। तो जब वो कुछ नया बनाती है उनको पेटेंट मिलता है। वो पेटेंट जो होता है वो उनको फ्यूचर में काम आता है, उनके इन्वेंशन को बचाने के लिए। देखो दिस इज गुड फॉर देम। सो पेटेंट फ्यूचर में काम आता है, वो एक एसेट होता है। बैड डेब्ट्स इज रिटन वेयर? इन P&L अकाउंट। नाउ वेरी क्विकली, आज बैड डेब्ट पे यू हैव गॉट टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट बैड डेब्ट। जनरली बैड डेब्ट हमेशा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, and there is this particular formula called as bad debt, additional bad debt, new RDD, old RDD. Now this has been specifically explained to you in a previous video.
bad debt T means what? Trial balance. And right now that is what you are looking at. You're looking at bad debt in a trial balance. The placement of this particular bad debt will go to profit and loss account, bad debt first line. यहां पर आपको ये लिखना है. Very important. Okay? याद रखना. Today we will be stressing upon this entire formula that additional bad debt कहां पर आता है? Adjustment. A का मतलब होता है adjustment. अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है. I have still not read that. So right now, please note T is trial balance and old RDD, that is also trial balance. Right now, we are reading a trial balance. That means in this particular formula, B, bad debt will come in trial balance. O, old RDD will come in trial balance. नहीं आया तो नहीं आएगा, तो zero. बट अगर आता है तो आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में लिखना है. Going back to the question, debit side is over. On the credit side, the first item is capital. It is money connected to the owners. In this question, Adi and Geet. The money that belongs, any amount that belongs to the partners will always go to partners capital account. Okay. Also keep this in mind. Look at these numbers. 1 lakh. मतलब आदि का जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो 1 लाख रुपीस का है और गीत ने जो पैसा बिजनेस में डाला है वो 50,000 रुपीस का है. डू कीप इन माइंड, थोड़े टाइम में ये काम आएगा. 1 लाख एंड 50,000. नेक्स्ट इज सेल्स. सेल्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. क्रेडिटर आर दोज पीपल जिनको हम पैसा कल परसों तरसों फ्यूचर में देने वाले हैं, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाता है. रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड आपको चेहरे से नजर नहीं आएगा कि सर ये तो पहली बार हम देख रहे हैं. एब्सोल्युटली नॉट. पहली बार आप सुन रहे हो, देखा आपने बहुत बार है. लुक एट द ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज रिटर्न के बाजू में क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड. एंड दिस हैज बीन रिटन इन एवरी सम. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, whenever you prepare this particular format trading account, ये हमेशा लिखना, because the more times you write it, automatically it registers in your mind. Purchase return का दूसरा नाम है return outward, meaning to say purchase के साथ में trading में इसको लिखना है. So return outward is purchase return, trading account is the posting. Now RDD, full form of RDD is what? Reserve for doubtful debt. Now I will say a few sentences on that, but it is my request and a reminder to you. I have specifically explained this previously. So if you want a detailed explanation of this particular formula, which is BANO, okay, matlab kya hai iska, what does it mean, how do I solve it, all of that has been done previously. So please check out the previous videos, okay. Detailed explanation has been given in that. Now please note, RDD, there are two RDDs in this formula, new and old. New का placement क्या है? Adjustment. मैंने अभी तक adjustment नहीं पढ़ा है. Right now we are in trial balance. Therefore this RDD, which is reserve for doubtful debt, okay, in the question, will be old RDD. Old RDD, okay. Therefore the placement will be in this particular formula in the fourth line. T trial balance मतलब ये trial balance में आता है. So question में इसका marking P&L होगा. Next is discount. ये मेंटल जॉब है, माइंड का काम है. ओके, अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं. एवरी मेंटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वेदर वो 10% हो 20% हो, वो हमेशा ऑफिस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में होता है. सो डिस्काउंट इज ऑल्सो P&L एंड कमीशन इज ऑल्सो P&L because both are mind work, that is mental calculation. We have marked our entire trial balance. Right now let's go to our adjustments. Today you see the quantity of adjustments is more. There are around 8 points written here because I have already explained a few new adjustments in a different video. I am applying those concepts that has been explained to you previously separately in this particular practical solution. First adjustment, closing stock. ये एकदम ऐतिहासिक एडजस्टमेंट है. ये लगभग हर सम में, लगभग नहीं, एक्चुअली हर सम में आता है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के लिए यू डू नॉट हैव टू पुट एनी स्टार मार्किंग्स.
So there is no need to worry about any markings for adjustments of closing stock. Second, please note goods, goods, goods. 3 बार लिखा है. Second is goods were stolen. Third is goods withdrawn by partners. And the next is goods distributed as free samples. All of these three are new. ये मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन में एक्सप्लेन करता हूं. इंपॉर्टेंट ये है दैट देयर इज नो नीड टू डू एनी स्टार मार्किंग. डायरेक्टली फिफ्थ पे जंप मारते हैं. आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस. हाँ, आउटस्टैंडिंग आज का खर्चा होता है जो आपने नहीं भरा, विच यू हैव नॉट पेड, प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर. Because of bank charges, you have to put the necessary marking in bank charges. By marking, I mean 1 star. Next is prepaid legal charges. Prepaid कल का खर्चा होता है. Legal charges से connected है, तो legal charges में आपको 1 star करना है. 7. ये आज का VIP adjustment है. It's a new adjustment that I will be explaining to you. Please read. Write off 10,000 for बैड डेब्ट्स. नाउ ऑलरेडी आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स तो थे, अब ये नया कहां से आ गया? प्लीज ये फॉर्मूला में ध्यान देना. ऊपर बैड डेब्ट, नीचे क्या लिखा है? एडिशनल बैड डेब्ट. और ये कहां पे आता है? एडजस्टमेंट. दैट मींस अभी जो आपने बैड डेब्ट पढ़ा, दिस पर्टिकुलर बैड डेब्ट, इट इज ऑफ द एडजस्टमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज एडिशनल बैड डेब्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे अच्छा सर बैड डेब्ट है ना, चलो मैं बैड डेब्ट को स्टार करता हूं. नो, ये बैड डेब्ट कौन कराता है? ये बैड डेब्ट जब आपका कस्टमर, ये जो है ना डेटर, कस्टमर भाग जाता है तो बैड डेब्ट होता है. देयरफॉर ये बैड डेब्ट का स्टार मार्किंग डेटर में होता है. दिस इज इट. 2 stars. I'll explain to you why is it 2 stars. Right now बैड डेब्ट के लिए आपको करना है 1 star. 1 star. उसके बाद थोड़ा आगे जाना एंड क्रिएट अ रिजर्व for doubtful debt. Now please note, reserve is R, doubtful debt is DD. That means इसका जो short form से नाम आता है is RDD. Okay, अब ये भी RDD है यहाँ पर और ये reserve for doubtful debt भी RDD है. Again, look at the formula. दो RDD है, new RDD and old. Old already हमने ट्रायल बैलेंस में मार्क कर दिया है. अभी जो आप पढ़ रहे हो that is what न्यू आरडीडी. बिकॉज ये कहां पे आता है? एडजस्टमेंट. तो ये पूरा फॉर्मूला कंफ्यूजिंग नहीं है. यू शुड ओनली नो कि इसका पोजीशनिंग क्या है. ये फॉर्मूला जो है इसमें बी ट्रायल बैलेंस में आता है, ओ ट्रायल बैलेंस जो हो गया. अभी हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हो. एडजस्टमेंट में क्या आता है? एडिशनल बैड डेब्ट एंड न्यू आरडीडी. सो व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट व्हिच इज आल्सो आरडीडी. दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू डेटर्स. इसके लिए डेटर्स पे आप क्या देख रहे हो? 2 स्टार. अगेन क्विकली आई टेल यू. 7th adjustment has 2 parts in it. Write off 10,000 for bad debt. This is part 1. This is connected to debtor. तो उसके लिए 1 स्टार आता है. उसके बाद है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. कोड वर्ड है RDD और ये भी जो 10% है वो किस पे है? डेटर. इसके लिए 2 एडजस्टमेंट है तो डेटर्स को 2 स्टार. राइट नाउ जैसे मैंने कहा हमने थोड़ा आगे प्रोग्रेस किया है, सो वी विल बी डूइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट. सो दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट. व्हेन यू हैव 1 स्टार you have to leave 1 line, but when you have 2 stars you have to leave 3 lines. प्लीज वो याद रखना, आदत हो जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम. 1 स्टार है बैंक चार्जेस में, 1 लाइन खाली रखना. Please leave 1 line for legal charges. But when it comes to sundry debtors, because there are 2 stars, you have to leave 3 lines. I hope that is understood by you. I will explain in detail in some time as we get into the solution of this. The last point. Partners. Who are partners? Adi and Geet. Profit sharing ratio. This is compulsory. It must be there in every question. In the part that we read above, we did not see a ratio. Okay? अभी क्या बोल रहे ध्यान से देखना. Partners profit sharing ratio is in their respective capitals. Now ये capital है. This is capital. 1 lakh and 50,000. So what is the question trying to tell you? That the ratio of the partners you have to derive from their capitals. Okay, so let's try to understand
What does this mean? Respective capitals में से हम रेशो कैसे निकालें 1 लाख एंड 50,000 में से? Let's have a look at that. ये 1 लाख है, ये आदि और ये है गीत. क्या किया है हमने? जो कॉमन जीरोस है, कॉमन जीरोस वेरी इंपॉर्टेंट है. 1 लाख में 5 शून्य होते हैं, 50,000 में 4 होते हैं, बट कॉमन कितने हो जाते हैं? 4. तो वो हमने कैंसिल कर दिया है. सो ये कैंसिल किया, बचा क्या? 10:5. सिंपल मैथ्स कर रहे हैं. 10:5 भी आप अगर कैंसिल करोगे लीस्ट फॉर्म, देन व्हाट विल यू गेट? 5 ones एंड 5 twos. मीनिंग टू से सबसे बड़ा नंबर था 1 lakh is to 50,000. After cancelling, it has come to 2:1. Now this 2:1 is your ratio. Now this is not new. We have previously done this. But in this particular question, this is how the question is asking you to derive the ratio. So in many chapters ahead, whenever they tell you partners profit sharing ratio is in respective capital. So please, you write their capitals, you do the necessary calculation, and at the end you will come to the least form. So 2/3 and 1/3 is what we will use later on in a question. Now that we have done the entire trial balance, we have discussed all our adjustments, let us go to our steps, and you will see step number 1, mark the trial balance. This has been done by us. Now it's time we start with our step 2, which is called as empty the trial balance. Let's have a look at a question. This is the entire trial balance that we have. We have to post it from here. Trading account, asset, trading account, one by one. Let us get started. Purchases is trading account. So please go to the trading account, and in that you have got to transfer, post 70,000. The next is debtors with 2 stars. Please note 2 stars means 3 lines. Leave 3 lines on the asset side. 1 lakh rupees. So go to the balance sheet on the asset side. So please note 1, 2, 3. We have left 3 lines for debtors. The next item will come here in this particular line. Okay. So that later on presentation में कोई mistake नहीं होना चाहिए. Moving on. Question has return inward. I had explained return inward is nothing but a different name for sales return. So in sales return we have to be transferring that, which is 2,000. Moving on, you have opening stock, that is trading account. So you have a look at the trading account, opening stock 30,000. Loose tools. Okay, I've told screwdrivers, then drilling machines. These are loose tools which different workers, carpenters, okay, plumbers, they use. उनके बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं. तो एक एसेट है क्योंकि वो उसी टूल्स को काफी सालों तक यूज करते हैं. So loose tools is an asset. We have to go to the balance sheet, and after debtors there were 3 lines left. So it has to come below that. 15,000, 15,000. Next is cash in hand. वो एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाएगी. 12,000. Next is drawings, partners capital account. Keep in mind this is debit, so we will transfer it to the debit side. Partners account. Before I go ahead, just a quick reminder, I had shown you what was the calculation of the ratio in this particular sum. Okay, just have a look at it here. This was the calculation. We had arrived at 2:1. From 1,50,000 after cancellations, we had arrived at 2:1. So it is this 2:1 which will be written here so that you remember to use it later on. So I'm just showing you that. And now I'll continue with the drawings. 2,500 for Adi and Geet. Next is bank charges. It is connected to profit and loss. So in profit and loss, let me write it 3,500. Leaving a line because there is a star marking to bank charges. Next, coal, gas and water. I explained all of these 3 are useful in the production process. Therefore, trading account. So go to trading account and post it.
2,500. Next, salaries, profit and loss accounts. Go to profit and loss account, 6,000. Okay. Continuing, legal charges. You paid to a lawyer, an advocate. He comes to work where the production is not happening. Post production. Office में काम करने के लिए आता है. Therefore, go to profit and loss. Remember, there's a star marking. So, in profit and loss, if there is a confusion, where do I write it? Should I write it above this formula, below this formula? You can write it wherever you want to. Write it on the debit side. But obviously, if I write it here in this single line, then I will not be able to fit the adjustment. So, I am writing it down. This single line, you can use it later also for any other debit item. Okay. So, there is no hard and fast rule about where to write it. Just write it somewhere where you get an extra line. Legal charges 15,000. Next, work manager salary. I told you, read it like production manager salary. So it goes to trading account, production area. 9,000. Next is discount. It is a mind job, mental calculation. Therefore, 10,000 is written in profit and loss account. 10,000. Now I could have written it here up also. It would not have been a problem. So please don't worry. Next item is goodwill, good reputation. Okay. Any company, sometimes, many times, people make a good reputation. Like I say, film actors, sports personalities, singers, different performers. But there are many companies, okay, famous companies that have made a very good reputation. Example, in the mobile industry, Apple is one company which has a very high reputation. Apple phones, okay, iPhones, they don't do anything special. You can do two main things in that also. You can make a call, receive a call, send messages and basic stuff, okay. But the charge of an iPhone is very high. Now they are not using gold to make an iPhone. At least maximum of the phones that they make, they don't use any precious item to make that iPhone. But the reputation is so good of that particular company, Apple company, that people keep that phone as a status symbol. So Apple company, because of its goodwill in the market, they can sell so many phones. Whenever Apple company launches a new phone, जब भी ये कंपनी यूएस में अपना नया फोन हर साल लेकर आती है, तो जिस दिन पे वो फोन लॉन्च होने वाला है, उनके शोरूम के बाहर ही बड़ा लाइन लग जाता है. लोग तंबू गाड़कर वहीं पे एक दो रात सो जाते हैं, क्योंकि उनको वो फोन सबसे पहले खरीदना है. ओके, आप देख सकते हो, काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी. सो गुडविल इतना काम आता है कि अगर आपने मार्केट में रेपुटेशन बना दिया है, आपका जो प्रोडक्ट है धड़ाधड़ बिकेगा. तो गुडविल इज यूजफुल इन फ्यूचर, तो वो एसेट साइड पे जाएगा. सो दिस इज इट, 70,000. नेक्स्ट इज पेटेंट. Also explained, but I'll once again tell you, whenever a company, अगर मोबाइल की कंपनी ने कुछ एक नया टेक्नोलॉजी बनाया, पहले मोबाइल्स एक सिंगल स्क्रीन पे आते हैं, पर अभी काफी कंपनीज, मेनी कंपनीज हैव फोल्डिंग मोबाइल्स, एंड एवरी कंपनीज फोल्डिंग मोबाइल हैज अ डिफरेंट स्टाइल. कोई लेफ्ट टू राइट ओपन होता है, कोई बैक टू फ्रंट ओपन होता है, कोई डाउन टू अप ओपन होता है. मीनिंग हर कंपनी अपने खुद की इन्वेंशन कर रही है वो फोल्डिंग मोबाइल को लेकर. वो दूसरे का कॉपी नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी, whenever a company makes a new invention, a new technology, they get a certificate for that. That certificate is called as patent. Nobody else can copy what they have made. Not very sure, but maybe you have seen a movie by the name of Three Idiots. Okay. The film actor, which was Mr. Amir Khan's wonderful name was Funsuk Wangdu, and people, the remaining actors, were trying to search him. वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. अभी फुंगसुक वांगडू का जो आमिर खान थे, उनका काम क्या था वो पर्टिकुलर मूवी में? वो एक इन्वेंटर थे, नया इन्वेंशंस कर रहे थे. और फिल्म में एक डायलॉग है कि ये इन्वेंटर जो है ना, इसके पास इतने सारे पेटेंट्स है. सो पेटेंट का मतलब क्या है? जब आप एक इन्वेंटर हो, कुछ नया इजाद करते हो, इन्वेंट करते हो, तो आपके नाम पे पेटेंट मिलता है. दूसरा, चाइना छाप नहीं कर सकता
कि हाँ तूने नया बनाया मैं तेरा कॉपी कर लेता हूं, नहीं। अगर आपने कुछ नया बनाया है, आपने मेहनत की है, उसमें आपने पैसा डाला है, समय डाला है, तो वो मेहनत का प्रूफ आपके पास होता है, जिसको कहते हैं पेटेंट। एक सर्टिफिकेट होता है, कोई भी आपका इन्वेंशन कॉपी नहीं कर सकता है। सो इट इज एन asset, therefore we will write it in the balance sheet on the asset side. Moving on, bad debt. Today we are starting with this formula in profit and loss account, which has B for bad debt. Trial balance, so we are in trial balance, तो ये पहले लाइन में हमको लिखना है 10,000. Moving on, now the debit side is over. Credit, capital, पार्टनर्स का पैसा है तो पार्टनर्स को दे दो क्रेडिट साइड पे. So go to the partners capital account on the credit side. 1 lakh to Adi, 50,000 to Geet. Next in the question is sales. It is a trading account item. So go to the trading account and please transfer it 3 lakh rupees. Next, creditors, people, लोग जिनको आपने प्रॉमिस किया है आप पैसे दोगे, तो वो पेएबल चीज होती है. Therefore it has to go to the liability side, meaning to say balance sheet. Always leave 4 to 5 lines at the beginning, क्योंकि यहां पर ऊपर एक दूसरा आंसर आता है later on जब आप टोटलिंग करते हो. तो creditors 50,000. Next, return outward. Return outward is 2,000. It is connected to what? Trading account. It is connected to purchases, this particular item. So in trading account we will transfer it 2,000. Okay. Next, look at your question. You see RDD. Look at this formula. There is new RDD, old RDD, and look at this. Old RDD कहाँ पे लिखा है? T for trial balance. And right now आप कहाँ पर हो? आप trial balance में हो. तो जो RDD आप देख रहे हो आपके सामने वो ओल्ड RDD है 1000 का. याद रखना ये क्रेडिट है, बट ये फॉर्मूला में आप कहाँ पे लिख रहे हो? डेबिट. तो क्रेडिट की चीज उठाकर आपने डेबिट में डाल दी, तो इसके लिए आपने सबट्रैक्ट कर दिया. ओके, आप क्रेडिट में नहीं लिख सकते इसको. यू कैन नॉट राइट इट इन द क्रेडिट बिकॉज इट इज कनेक्टेड. ये पूरा एक परिवार है, फैमिली है, तो आपको ये सबको साथ में ही रखना है. आप अगर एक फैमिली में रहते हो सकता है कि भाई के साथ में, बहन के साथ में थोड़ा झगड़ा झगड़ी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप चले जाओगे. ओके, एटलीस्ट ऐसा होना तो नहीं चाहिए. तो इवन दो मनमुटाव होता है, थोड़ी खींचातानी होती है, यू स्टिल स्टे टुगेदर. तो ये पूरा एक फैमिली है, इसको साथ में ही रखना है. ओके, तो हमने ये क्रेडिट से उठा के अपने पास लेके आ गए, पर साइन डाल दिया माइनस. सो पोस्टिंग उसका ऐसे है 1000. देन लुक एट द क्वेश्चन. डिस्काउंट इज calculation 3000. We have to write it in the mind account, that is profit and loss account. Why have I left the first line? Normally यहाँ पे gross profit आता है जब आप कास्टिंग करते हो, तो इसके लिए आप रख दो खाली. नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हो. Next is commission 4000. Again it is a mental calculation. It must be written in the profit and loss account. So here it is 4,000 rupees. So डिस्काउंट जब डेबिट है तो डेबिट में लिखो, डिस्काउंट जब क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो. डिस्काउंट डेबिट का मतलब है डिस्काउंट अलाउड, जो आप कस्टमर को देते हो. जब आप कस्टमर को बोलते हो, व्हेन यू टेल योर कस्टमर डोंट पे मी 10%, डोंट पे मी 100 rupees, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड. वो आपका नुकसान होता है, इट इज ऑन द डेबिट साइड. बट समटाइम्स वी रिसीव डिस्काउंट, हमको सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड. सो द डेबिट वन आगे लिखा नहीं है, बट प्लीज नोट दिस इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, यू डोंट हैव टू वरी, आपको इतना याद रखना है. ये डिस्काउंट कहाँ पे आया था? डेबिट, तो मैंने डेबिट में लिख दिया. ये क्रेडिट में आया तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया. नाउ लुक एट योर क्वेश्चन. यू हैव finished the entire transfer, so you have to go to the steps, and the second one, empty the trial balance, is over. Now we are entering step number 3, which is called as solve adjustments. For that, let's look at a question once again. Today we have some extra adjustments, since I've already explained in a different video specifically the effects of this particular adjustments. I'll do my best to explain it
once again, but if you want it in a very detailed manner, in a very simple manner, in a very lucid manner, it is my request, please, you can go to the previous videos via the cards that are being provided and get detailed, lengthy explanation of all of these new adjustments. Let's start. Our first adjustment is closing stock. This is not a new one. This is a very historical adjustment. It comes in every question of final accounts, whether you are in 11th standard or you are in 15th standard. Any standard, if you are doing final accounts, you will have closing stock. Same to FX. First, because it is connected to stock, it has to go to the trading account. So we already have closing stock here. So the first effect will appear in the trading account. 65,200. The second effect is this closing stock is beneficial tomorrow. If you keep goods today, many a times the government keeps on declaring that there is going to be a lockdown for these many days. What does that mean? Certain things may not be available in the market. So what your mom may do, what your father may do, they may go to the market and they may buy things, the ration and the extra things for maybe 10 days, 15 days, and they will stock it up and keep it in the kitchen, in the fridge. In one day it doesn't get over. It is useful ahead. Okay, so in emergency situations, stock is kept and that same stock is not thrown away. It is useful in future. Therefore, second effect will be on the asset side. 65,200. Our second adjustment today is goods. I'm repeating myself. Look at second adjustment, first word, goods. Third adjustment, first word, goods. Fourth adjustment, first word, goods. The moment you see goods, you have to go to the godown. Please note this. Second says, goods were stolen of 10,000. मतलब क्या है, कोई चोर आया, ओके, और ये चोर ने आपसे कोई टिंग टोंग बजा के परमिशन नहीं मांगा. वो आया ऐसे टाइम पर जहां पर आप सोए थे या आप ऑफिस में नहीं थे या आप आपके दुकान में नहीं थे और ये चोर गुड्स लेकर भाग गया. तो गुड्स कहां पर रखा होगा आपने? गुड्स आपने रखा होगा आपके फैक्ट्री में जहां पर प्रोडक्शन होता है. तो गुड्स जैसे ही कहे, द मोमेंट यू सी गुड्स, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख लो फर्स्ट इफेक्ट, बाय गुड्स स्टोलन 10,000. फिर सोचना इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा. क्या आपको, अगर आप कस्टमर को गुड्स बेचोगे ना तो पैसा तो आने वाला है ना, 1 महीना 2 महीना बाद पैसे आ जाएंगे. आपको लगता है चोर आके ईमानदारी बताएगा, ईमानदारी से आपके पैसे देगा? द थीफ विल नॉट come back and give your money to you. That is the reason he is called as a thief. Okay, so ये पूरा नुकसान है. It is a loss for you. आपको ये सफर करना पड़ेगा. तो ये जो नुकसान है ये सेकेंड इफेक्ट के लिए याद रखिए. This is buy, so you have to have a 2. This is credit, so you have to have a debit. So in profit and loss account, on the debit side, you will write to loss by theft. Okay, 10,000. So this was the explanation. Next, again goods. So very simply, goods दिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, बस सिंपल सी बात है. अभी क्या हुआ गुड्स के बारे में? Goods withdrawn by partners. I have done this previously. You should be aware about it. Partners, Adi, Geet, they came in the business. They went to the factory and they picked up the goods. घर पे लेके गए, घर वालों के लिए लेके गए. तो ट्रेडिंग अकाउंट में से क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना है हमको. सो यहां पर लिखना है हमको. सो लेट्स राइट बाय गुड्स विथड्रॉन. कौन लेके गया? आदि 3,000, गीत 2,000. ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट. ओनर्स से कनेक्टेड, पार्टनर्स से कनेक्टेड कुछ भी होगा तो सेकेंड इफेक्ट उनके अकाउंट में आएगा. 2, इसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग. 3,000, 2,000. नाउ डोंट से, ऐसा मत सोचो अरे सर ड्राइंग्स तो पहले से ही था, अब ये 2 बार कैसे आ गया. अरे सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी आपकी है, आप गाड़ी पर कितनी बार बैठते हो? दिन में 4 बार या दिन में 40 बार. कोई कुछ कह सकता है आपको? नहीं. ये बिजनेस इनका है, आदि और गीत का. इनको जितने बार पैसा निकालना है बिंदास निकाल सकते हैं. कोई भी इनको मना करने वाला नहीं है. वो पैसा निकाल सकते हैं, वो गुड्स निकाल सकते हैं. Nobody will stop the businessmen because they are the
ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, सो ड्रॉइंग्स कितने भी हो सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्या लिखा है, फ्री सैंपल्स. मतलब क्या है, द कंपनी इज गिविंग पब्लिक, जनता को फ्री का प्रोडक्ट बांट रही है. अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियां फ्री का दिया जा रहा है या गोल्ड का सामान फ्री का दे रहे हैं, नहीं, इतना महंगा चीज देते नहीं है. ओके, बट कभी कभी कंपनीज करते क्या है ना, वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं. प्रोडक्ट होता है बड़ा 1 किलो का, बट उसमें से छोटा पैकेट बनाते हैं और पब्लिक को फ्री का देते हैं. ओके, स्टेशन पे खड़े रह के देते रहेंगे या किसी बड़े प्रोडक्ट के साथ चिपका के, ओके, अटैच करके वो देते रहेंगे. तो गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहां से करते रहेंगे, जहां से गुड्स रखा गया है. इट हैज बीन केप्ट इन द गोडाउन. गोडाउन मतलब आपको वापस से जाना है ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So on the credit side it is written by goods distributed as free samples. First effect 15,000. Please note, goods always go to the trading account when you are dealing with goods. Now think about it. ये तो first effect हो गया buy. अभी इसका to मैं कहां पे लिखूंगा, आपको intention सोचना है कि ये फ्री का क्यों दिया गया है. Very simple. You are a modern generation. You are used to social media. आप YouTube से काफी कनेक्टेड रहोगे ना. YouTube पे काफी प्रोड्यूसर्स लोग अपने आने वाले फिल्म का एक ट्रेलर बताते हैं और अलग अलग टीवी चैनल्स पे भी बताते हैं. पूरा पिक्चर नहीं बताते हैं मूवी रिलीज करने के पहले. 1 मिनट का 1.5 मिनट का ट्रेलर होता है. डू यू हैव टू पे फॉर दैट ट्रेलर? नो, इट इज फ्री फॉर यू. ओके, बट व्हाई इज दैट फ्री ट्रेलर बीइंग शोड टू यू? क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि फिर आप वो पिक्चर देखने के लिए थिएटर में आगे जाओगे. तो वो प्रोड्यूसर जिसने वो फिल्म बनाया है बट छोटा सा ट्रेलर आपको फ्री का बता रहा है, वो उस ट्रेलर के माध्यम से, मीडियम से, what is that producer trying to do? He is trying to advertise his particular film. The film for a producer is a product. So every company does that. वो जो भी बनाती है, साबुन बनाया, एक सैंपल उन्होंने लोगों को फ्री का दे दिया. शैम्पू बनाया, छोटा सा सैशे जो होता है, पैकेट जो होता है, उन्होंने लोगों को फ्री का बांट दिया. तो उससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है. आप यूज करते हो, आपको वो पसंद आता है, आप आपके दोस्तों को भी उसके बारे में बताते हो, तो कंपनी के लिए फ्री का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है. तो इसका सेकेंड इफेक्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, जो कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट, 15,000. I'm hoping these adjustments which are connected to goods, second, third, fourth, all are clearly understood by you. Fifth, outstanding bank charges. Outstanding is a very common adjustment. I have been doing it right from the beginning, but not stopped it till now. I just want to make sure that this is etched in your mind. It is fixed in your mind. Outstanding का मतलब क्या होता है, आज का खर्चा, और आज का खर्चा आपको हमेशा प्लस करना है. सिंपल सी बात है, अगर भूख आज लगा है तो कल खाना खाओगे, कोई फायदा होगा नहीं. भूख अभी लगा है तो अभी खाना है, ओके, कल खा के कोई मतलब नहीं है. तो ये आज का है, तो आज आपको प्लस करना है. ओके, पेट में खाना आज ही जाना चाहिए, आज ही प्लस हो जाना चाहिए. तो आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ, बैंक चार्जेस कहां पर है ढूंढ लो और इसके अंदर उसका फर्स्ट इफेक्ट दे दो, 500 प्लस. सेकेंड इफेक्ट, कल ये आपको पे करना है. 500 ना आपने प्रॉमिस किया है कि आप बैंक वाले के बोल रहे हो, मैं कल आऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा. ओके, तो जो भी कल आप पे करोगे उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखना पड़ता है. सो दिस इज इट, आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस 500. यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है और जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो तो शॉर्ट फॉर्म अलाउड है. नेक्स्ट इज प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब क्या होता है, कल का खर्चा. ओके, कल का खर्चा मतलब ये जो लीगल चार्जेस है ये कल का खर्चा है. वकील को एक्चुअली वकील काम कल करने वाला है आपके लिए, बट पैसे आपने उसको पहले से ही देके रख दिए हैं. नाउ एग्जांपल, मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, पर जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज होते हैं, या फिल्म स्टार्स होते हैं, वो वकील का पेमेंट पूरे साल का पहले ही करके रख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जेल जाने का कोई शौक नहीं है. तो अगर उनके ऊपर कोई भी मामले के कनेक्शन में एग्जाम्पल कोर्ट केस होने वाला है, उनको जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी. वो जो एंटीसिपेटरी बेल होती है ना,
वो पहले से ही रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उनको वकील ढूंढने की जरूरत नहीं है, वकील उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल होता है. द लॉयर इज अवेलेबल फॉर देम always 24 hours. They can just give a call even though night 2 o'clock the lawyer is going to be available, because they pay his legal charges in advance. So they pay for the future. First, ये कल का खर्चा है प्रीपेड, तो लीगल चार्जेस में आप क्या करोगे, आप माइनस करोगे. ओके. एंड सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, एसेट साइड पे ये आ जाएगा. क्यों एसेट साइड पे आएगा, क्योंकि ये आपके लिए कल फायदेमंद है. इट इज बेनिफिशियल टू यू. सो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट. नाउ वी हैव रीच्ड अ लास्ट एडजस्टमेंट. वेल, क्वेश्चन में सेकेंड लास्ट है. 7th 8 के बारे में मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बता देता हूं, बट 7th में क्या लिखा है, लेट्स रीड इट. राइट ऑफ 10,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट at 10% on debtors. And that's simple. मैंने सिर्फ पढ़ दिया, वो तो आप भी पढ़ सकते हो. But yes, it's my job to explain to you what's the meaning. Write off means what? It means subtract. Off का मतलब remove it. Subtract. What do I remove? Where do I remove it from? 10,000 for bad debt. Okay. Now थोड़ा स्क्रीन की तरफ देख लो. Bad debt. तो you may say, sir, bad debt तो पहले से था. ये bad debt क्या कर रहा है? Well, this particular bad debt means, ये profit and loss में फॉर्मूला देख लो. There is a bad debt and there is an additional bad debt. Okay? Bad debt means what? कस्टमर पैसा लेके भाग गया. अभी कस्टमर का तो कोई ठिकाना नहीं है ना. There are multiple customers in a business. Okay? Big companies have got lakhs of customers. उसके अंदर से 10, 15, 20 कोई ना कोई तो नालायक निकलता ही है. Okay? और वो कंटिन्यू करते रहता है. So some people ने पहले ही बैड डेब्ट करा दिया था और कुछ लोगों ने अभी एक्स्ट्रा बैड डेब्ट करा दिया है, फर्दर बैड डेब्ट एंड एडिशनल बैड डेब्ट. सो दिस एडिशनल बैड डेब्ट विल कम इन adjustment. So when we read the question, in the adjustment if you see bad debt, please understand it is additional bad debt. Now how do you solve additional bad debt? Bad debt is connected, किसके साथ रिश्ता रखता है बैड डेब्ट का, जो वो बैड डेब्ट कराता है, जो हमारा पैसा लेकर भाग जाता है. और वो बंदा कौन है, दैट इज द डेटर्स. डेटर्स आर कस्टमर्स. ओके. उसमें से कुछ लोग नालायक निकलते हैं और हमारा पैसा लेकर भाग जाते हैं. तो 1 लाख में से फ्रॉम 1 लाख रुपीज उतना पैसा आपको नहीं मिलने वाला. उसको टाटा बाय बाय बोल दो और भूल जाओ, तो उसको आपको माइनस करना है. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. माइनस additional bad debt. Very important. You have to write the word additional, or even if you write the word further, it is fine, not a problem. First effect, we have to subtract. This is how it appears. This is first effect. Second effect, पहले बताया है मैंने, पहले समझाया है मैंने कि डेटर का जो चक्कर है ना, वो किसके साथ है, वो ये फॉर्मूला के साथ है, बैड डेब्ट के फॉर्मूला के साथ. इसमें आपको पहले से ही इट्स ऑलरेडी रिटन बाय यू, additional bad debt. This is your second effect. This is how we do it. 10,000. Very simple. Okay. If you are confused, sir, यहाँ पे sign क्या है? देख लो. Plus. It is a plus. Okay. Now let us go and continue with the position. Debtors after 10,000 subtraction has become 90,000. If you look at your question, आगे पढ़ो क्या बोला है. And create. Please understand. क्रिएट का मतलब क्या होता है, नया, न्यू. ओल्ड चीज क्रिएट नहीं होता, ओल्ड चीज ऑलरेडी बन चुका है. क्रिएट का मतलब नया, न्यू. अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, शॉर्ट फॉर्म RDD. वेरी केयरफुली लिसन टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो भी उन लोगों को या तो आरडीडी का फुल फॉर्म नहीं पता, या तो आरडीडी को सॉल्व कैसे करना है नहीं पता. इट इज अ वेरी बिग problem for students, difficulty for students during this particular chapter. Do not worry, just like remaining adjustments, we will practice this also a lot. To the extent possible in every sum, we will again and again be doing reserve for doubtful debt. पुरानी कहावत है, practice makes a man perfect. Okay, man, woman, जो भी बोलना है आपको, but the catch word, the magic word is practice. We have to keep on constantly repeating this adjustment. Right now, reserve for doubtful debt
has a short form called as RDD. You can see there's already an RDD. This is which RDD? ये आप create नहीं कर रहे, ये पहले से था. इसको कहते हैं old RDD and it is already there in profit and loss account. Look here, old RDD. Okay, you will create new. So what we are going to solve right now is new RDD. Now what is the full form of RDD? Obviously it's there in the question. It is doubtful debt. Doubt, शक है आपको कि आपका नुकसान होगा. Now you may ask कि सर ये RDD है ना किसके साथ कनेक्टेड? यहाँ पे तो बोला है डेटर्स, बट अगर सोचो डेटर्स नहीं बोला होता. Now you have to understand, if you look at the balance sheet, मैं बता रहा हूँ RDD का कनेक्शन किसके साथ होता है. बैलेंस शीट में देख लो. Is RDD connected to loose tools, screwdriver, नट बोल्ट, मशीनरी? ये सब टूल्स होते हैं ना जो पाना होता है. नहीं, क्योंकि आप स्क्रू ड्राइवर पर, ड्रिल मशीन पर डाउट नहीं कर सकते. मेरा ड्रिल मशीन ना मेरे को डाउट करता है कि कल भाग जाएगा कहां पे. नहीं, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डाउट. यू कैन नॉट डाउट कैश, यू कैन नॉट डाउट पेटेंट. दीज थिंग्स पे कोई डाउट नहीं होता. डाउट इंसान पे होता है क्योंकि इंसान की फितरत बदलती है. द नेचर ऑफ अ पर्सन कैन चेंज एंड द पर्सन is only debtors in this entire list of assets. So doubt concept is only applicable to debtor. So right now your debtors are 90,000 and the adjustment says 10% doubt. So you have a 10% doubt. Look at your balance sheet. So on 90,000 you have to calculate 10%. What is the doubt? It is not a good doubt. It is a bad doubt. You are doubting that 10% from this 90,000 will run away. Because they will run away, they are going to be bad people. आपको बुरे लोगों के साथ कोई लेना देना रखना नहीं है. सारे रिश्ते नाते तोड़ देने हैं. तो आपको ये लिस्ट में से 10% निकालना पड़ेगा. So this is how you do it. Minus 10% new RDD. Short form is okay, perfectly fine. And you calculate of 90,000 10%. What you get is minus 9,000. Second effect, debtor का चक्कर ये फॉर्मूला के साथ है. And in this formula new RDD is already written. So you only have to place it. यहाँ पे बस रख देना है आपको 9,000 rupees new RDD. This is how you do it. 9,000. Later on, we will put the answer of this formula in the outer column. To get the question first, because this 8th point, let me just clarify this very fast. Partners sharing profit sharing ratio in their respective capital. I have already explained this to you. This was the meaning. 2/3, 1/3. So this particular thing is not an adjustment. It is only an information. इसका आपको कोई डेबिट क्रेडिट करना नहीं है. मैथ्स करना था, मैथ्स हमने करके रख दिया. लेटर ऑन जब कास्टिंग करेंगे तो वो वाला इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे. तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. आप इसको स्टेप्स में लेकर जा सकते हो और यहां पर एक करेक्ट मार्किंग कर सकते हो. Now we are starting our step 4, which is called as tally the accounts and balance sheet. For this, very quickly, we are going to the question. Just to tell you, these were the adjustments that which we have solved. Before we start with this step 4, make sure in every account, trading account, profit and loss account, partners capital account and balance sheet, everything in the inner column is transferred to the outer column, and then you can start with step number 4. So very quickly, let us do that. Our first answer is of purchases 68,000. Then sales will be transferred outside 2,98,000. Goods withdrawn 3,000 plus 2,000, 5,000. Moving on, profit and loss account, transfer bank charges in the outer column. Very important, for the first time in this particular video lecture, we have the formula of bad debts, BANO. First 3 items are plus, even though यहाँ पे आपको plus नहीं दिख रहा है. When there is no sign, it means it is plus. So 10,000 plus 10,000 plus 9,000 minus 1,000. Okay, that one answer will go outside. अंदर आप कितनी भी मेहनत कर लो, till the time आंसर बाहर नहीं आता and correct answer, marks नहीं मिलेंगे. Okay, so be careful about this particular formula. We do put in a lot of hard work. You put in a lot of hard work. So be careful about it. Okay. In this formula, for some reason, अगर कुछ नहीं है, example, bad debt नहीं है,
सिर्फ नेक्स्ट 3 है, या हो सकता है ओल्ड आरडीडी नहीं है, नो प्रॉब्लम्स ना, उसको ब्लैंक रखना और बाकी का आप कर लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आंसर 28,000। लीगल चार्जेस उसको माइनस करके बाहर डाल दो, 14,000। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्लस माइनस करना है। हाँ, बैलेंस शीट, उसमें सन्ड्री डेटर्स। नाउ थोड़ा केयरफुल रहना, व्हाट डू सम स्टूडेंट्स डू, 1 लाख माइनस 10,000, 90 वो बाहर लिख देते हैं। नाउ यहाँ पे 90 ऑलरेडी है इन अ कॉलम में, यहाँ पे you still have not finished both the adjustments, minus 9,000 के बाद adjustment खत्म होता है, and then in the outer column आप transfer करोगे। So this is it, 81,000। Now that inner column outer column में transfer हो चुका है, we can definitely start with our casting process, which is tally the accounts, for which we have to go to the trading account. I will keep the system the same. जो येलो सेल्स में आएगी वो रफ वर्क है, दैट इज नॉट कंपल्सरी टू बी डन, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट वी आर डूइंग कास्टिंग। डेबिट टोटल पहले लिख लो, पेंसिल में लिख रहे हो तो लिख लो, दैट्स अ गुड थिंग, पेन में मत लिखना, कंफ्यूजन होता है फॉर द एग्जामिनर टू करेक्ट, ओके। एंड देन क्रेडिट टोटल, एंड देन कंपेयर विच इज हेवी विच इज लाइट, वजन कौन है और कौन हल्का है। सो हियर डेबिट टोटल 109,500 and then credit total 3,93,200. So credit is heavy. That is what will come in the grand total in the last line. Debit में difference आएगा, which in this sum is 2,83,700. What is this? Profit. It is the same. We have been solving many questions. Nothing changes on the debit side. We always call it ग्रॉस प्रॉफिट। फैक्ट्री का प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट हमेशा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जस्ट टू रिपीट, प्रॉफिट क्यों है? बिकॉज क्रेडिट में इनकम है, इनकम इज मोर एंड एक्सपेंस इज लेस, देयरफॉर द आंसर इज प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब कैरीड डाउन का मतलब यू हैव टू एक्चुअली कैरी इट टू द नेक्स्ट अकाउंट। दैट इज हाउ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिंक हो जाते हैं। So in this first line, that is the reason we left the first line, क्योंकि normally gross profit आता है, वहां पर आता है to, यहां पर आता है by। Then total कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट का टोटल 87,000, क्रेडिट इज 290,700। सो क्रेडिट इज हैवी, वो दोनों साइड पे लिख लो। नाउ थोड़ा स्पीड स्लो करना, यहां पर कैलकुलेशन होता है तो सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट डू यू डू? 2,97,700 minus 87,000. First write the difference, which is 203,700. 2,03,700. What is this? Again, credit में इनकम है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ये प्रॉफिट है। नाम क्या है इसका? नेट प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट इन दिस सम ओनर कौन है? ओके, इट इज आदि एंड गीत, तो ये दोनों के पास जाना चाहिए, बट टोटल नहीं, ये टोटल है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? नॉट हाफ एंड हाफ, दैट इज व्हेन द रेशियो इज 1/2, 1/2 fraction. Okay, in this sum it was different. Okay, what was the ratio in this particular sum? 2/3 and 1/3. I have consistently repeated that there was a point in the question which said partners profit sharing ratio is in their respective capital. तो हमने थोड़ा मैथ्स किया, थोड़ा कटिंग का काम किया, and then we got 2:1. So 2/3 and 1/3 is what we will be using now. So in profit and loss account, net profit has to be distributed to two partners, Adi and Geet. Now the calculation, profit multiply by 2/3, Adi का शेयर आ गया, Geet का multiply by 1/3, 67,900. Now obvious है, ये आपको कैलसी के हेल्प से नहीं करना है, ये आपको अपना ही दिमाग लगाना है, नोटबुक के रफ वर्क में आप कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन, दिस नाउ 2 इट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स को हमको उठा के देना पड़ेगा। उनका अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे बाय, सो ऑन दिस साइड विल ट्रांसफर हो गया। नाउ इसमें भी हमको कास्टिंग करना है, विच इज टोटलिंग। सो आदि का पहले आप टोटल कर लो रफ, उसके बाद में गीत का कर लो। So let's continue. So the debit total 5,500 and credit total
35,800. Okay. Now for Geet, it is 4,500, and then for credit side 1,17,900. और भी आदि का पहले आप टोटल कर लो और उसका आंसर ढूंढ लो. सो आदि का क्रेडिट हैवी है तो वो ग्रैंड टोटल में लिख लो, क्रेडिट then debit, then the difference on the debit side, because the difference is occurring on the debit side. So 2,30,300 आदि का आंसर आ गया. ये आदि का कौन सा आंसर है? कैपिटल का आंसर है, कैपिटल का अकाउंट है ना. ये कैपिटल उसका स्टार्ट में 1 लाख था, फिर उसका कैपिटल बढ़ के 2,30,300. यू में आप सर ऐसा क्या मैजिक हो गया? मैजिक नहीं हुआ. यू कैन नोटिस प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है, तो प्रॉफिट तो मालिक का ही होता है ना, तो हमने उसको दे दिया, तो उसका ऑटोमेटिकली जो कैपिटल है वो बढ़ गया. डू द सेम फॉर गीत. देन ऑन द डेबिट साइड यू विल सी द डिफरेंस 1,13,400. दिस इज द करेक्ट आंसर. बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? दे आर द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ आदि एंड गीत. दिस इज व्हाट वी कॉल इट टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल. अब ये यहां से कहां पे जाएगा? ये डेबिट है. So from here the only thing we are remaining with is the balance sheet. So you have to transfer the owner's money to the balance sheet. So in the balance sheet on the liability side, capital is transferred. So this is how we write it. Adi and Geet in a column. Total करके इसको बाहर आप लिख लो. Okay. And as usual at the end balance sheet balance होना चाहिए. दोनों साइड पे total same आना चाहिए. If you can do that, then you are successful with this particular solution. So let's do our totaling. Debit total, then credit total, which obviously is the same in this particular sum. So it's congratulations time for you as well as for me. This means we are done with our step, which was the last one. Step 4, tally the accounts and the balance sheet. Okay students, this is my return gift to you. क्योंकि आप मेरे पार्टी में आए थे तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है. सो ये आज का होमवर्क है जो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, विच इज वेरी सिमिलर टू द former part of this video in which a different question was discussed. It says, Shireen and Farhad are partners. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet on that date. We have a trial balance. I'll quickly go through it. The first step has already been done so that we can save some time. Purchases is always in trading account. It is a fixed item. It never changes. Debtors are customers. Customers हमारे लिए अच्छे होते हैं, future के लिए अच्छे होते हैं. Therefore asset. Return inward. Sales return का दूसरा नाम है trading account. Drawing partners के साथ connected है, इसके लिए partners capital. Salaries office वाले का पगार है, इसके लिए profit and loss. Coal, gas and water is required during the production process, therefore trading. Bank charges, बैंक का कोई connection होता नहीं है production के साथ में, so वो post production होता है, therefore it is profit and loss. Discount is a mind calculation, it is therefore profit and loss. Work manager's salary, work means production, so read it like this, production manager's salary, and it's obviously connected to trading account. Legal charges means the payment done to the advocate. वकील को जो आप पेमेंट करते हो वो ऑफिस में कनेक्टेड होता है, प्रोडक्शन के साथ बिल्कुल नहीं होता. Therefore profit and loss. Goodwill means good reputation. अगर आपका नाम मार्केट में बहुत अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आपके नाम की वजह से बढ़ेगा. एक जगह से दूसरे जगह पर जब आप जाओगे, जब एक नया ब्रांच खुलेगा तो नाम की वजह से ही कस्टमर्स खींचे चले आएंगे. तो गुडविल, गुड रेपुटेशन, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा होता है फ्यूचर के लिए. इसके लिए एसेट. पेटेंट, अगर आप कुछ नया इन्वेंट करते हो, ओके, हर फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, मोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे दवाइयां बनाई जाती है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होते रहता है. सो व्हेन एन इन्वेंटर मेक्स समथिंग न्यू, he has to protect his invention. How does he do that? He obtains a certificate. That certificate is called as patent. Patent ये प्रूफ करता है कि ये उसका इन्वेंशन है, कोई उसको चाइना छाप कॉपी नहीं कर सकता है, तो ये उसके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है. तो एक तरीके से पेटेंट एक बॉडीगार्ड का काम करता है. ओके, टुडे, टुमारो और आने वाले सालों में भी. तो पेटेंट इज गुड टुमारो.
therefore it is an asset. Bad debt specifically ये वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है. The whole formula of bad debt has been discussed. So for any clarification, how do I handle bad debt? Please, you can always rewind and check the solution. It is very same to that one. Opening stock is trading. Loose tools. Tools is a screwdriver. It is a drill machine. It is useful in the future. उसके बगैर कारपेंटर, प्लम्बर काम नहीं कर सकता है. Asset. Cash in hand is always an asset. Credit side. Commission is a mind calculation, profit and loss. Discount is a mind calculation, profit and loss. RDD is again reserved for doubtful debt. It is connected to the bad debt formula. Please, you can always rewind, check it out. How do you deal with this? There are two RDDs. Is this new or old? You have to understand this. And the explanation has been provided. Return outward is the other word for purchase return. Therefore, trading account. Who is a creditor? A person to whom you have promised to pay in future. So, payable. हर payable एक liability होती है. Sales trading में जाता है. Capital partners के साथ connected है. इसके लिए partners capital account. Let's go to our adjustments. Our first adjustment is closing stock. Closing stock has two effects. It is the same. उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है. You should be able to manage it. Goods lost in riot. दंगा फसाद हो गया, उसके वजह से आपके गुड्स जो थे वो कुछ लोगों ने चोरी कर लिए. उन्होंने गोदाम तोड़ दिया, सामान निकाल के वो वहां से रफू चक्कर हो गए. तो याद रखना है कि इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा? जहां पर गुड्स रखे हैं. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? आपको इसका पैसा नहीं मिलने वाला. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा नुकसान है और उसको कहते हैं लॉस बाय राइट. लॉस बाय राइट. तो वन इफेक्ट विल बी गुड्स के प्रोस्पेक्टिव से, सेकेंड इफेक्ट विल बी लॉस बाय राइट के प्रोस्पेक्टिव से. फॉर दिस अगेन former part of the video, please check it out. Very similar adjustment has been solved. I am not spoon feeding you everything. एकदम सेम नहीं है. थोड़ा अपना दिमाग जरूर यूज करना to get an answer for this. Third is already known by you. Goods withdrawn by partners. I am considering all of you to be excellent and smart people. Okay? आप लोग बड़े विद्वान लोग हो. आप लोग ये आपने आपसे हैंडल कर लोगे. हाँ, गुड्स फिर से lost in accident. So, एक्सीडेंट कहां पे हो गया रहेगा? जहां पर गुड्स थे. फाइन, उसके वजह से कुछ नुकसान हो गया आपको. तो जो एक्सीडेंट हो चुका गुड्स है, आप क्या करोगे उसको? क्योंकि उसमें डैमेज हो चुका है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, तो आप उसको फेंक दोगे. तो फैक्ट्री से आप, गोदाउन से आप ये गुड्स फेंक दोगे. ये है फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड, इसका कोई पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, तो सेकेंड कहते हैं लॉस इन एक्सीडेंट. तो ये आपको सेकेंड इफेक्ट में लिखना है. अगेन इट इज ऑन टू यू टू अंडरस्टैंड ये कहां पे लिखना है. देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आई हैव पुट 1 स्टार फॉर सैलरी. Prepaid bank charges, I have put 1 star for bank charges. The seventh one is the VIP adjustment in this question. It says write off 20,000 for bad debts. You have to understand कि ये कौन सा bad debts है, क्योंकि पहले से ही bad debts दिया गया था. अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 2 bad debts वहां पर होते हैं. So please again, ये फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है. Complete explanation has been given. You can always go back and check it out. ओके. बैड डेट कौन कराता है? आपका कस्टमर कराता है. देयरफॉर डेटर्स में 1 स्टार. एंड लिटिल अहेड एंड क्रिएट. क्रिएट का मतलब है समथिंग न्यू. ओल्ड चीज कभी क्रिएट नहीं होती, न्यू इज क्रिएटेड. क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. शॉर्ट फॉर्म RDD. कोड वर्ड RDD. अगेन लुक एट दैट फॉर्मूला. देयर आर 2 RDDs. You have to figure out which is old and which is new. You have a doubt on whom? You have a doubt on debtors. Therefore, bad debt भी debtors कराता है and RDD doubt भी आपको debtors पे है. So there are 2 stars on debtors here. 2 star debtors पे है. 8th adjustment is actually not an adjustment. It is only an information. Profit partners profit sharing ratio is in their respective capitals. मतलब capitals के साथ ratio connected है. देख लो यहीं पे है 2 लाख 1 लाख. तो ये 2 लाख 1 लाख में से आपको कटिंग करना है. ओके, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द लीस्ट फॉर्म एंड यू विल गेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, दिस इज योर होमवर्क. ऑल द वेरी बेस्ट टू सॉल्व इट.
Well, it's time for me to be back on screen once again. It's time for me to say sayonara to you, bye to you. Do remember, comment section हमेशा available है. कोई भी doubt आपको हो, please utilize the comment section to type in your doubt, so that that doubt which is your alone doubt can be a doubt of multiple students. Together that can be solved in upcoming videos. Take care, hoping you're doing well.